now. Basically, under architecture, we have to discuss about. Am I audible? Neither an आवाज. Not need of mic. I think so. Mic का जरूरत नहीं होगा. हाँ. So basically, the paper under which we have to discuss the architecture. Before initiating that paper, I just give you the overview of the particular course. That is the BSc IT. So you have to follow 3 years course. ठीक है ना? So in 3 years course, first year contains certain IT paper. Some subsidiary paper is also there in the form of mathematics and English. Electronics. Not electronics is your main paper. Basic electronics is your main paper, under which you have to discuss about the semiconductor, and that is a part of physics, modern physics you can say. And in that segment you discuss the particular physics part, which is introduced in computer. यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो बात करेंगे वो माइक्रो प्रोसेसर जो है उसमें जो मैकेनिज्म यूज हुआ है सेमीकंडक्टर, दैट शुड बी डिस्कस्ड इन डिटेल्स अंडर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स. तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यू हैव ए पेपर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आर्किटेक्चर, देन फंडामेंटल पार्ट ऑफ द आईटी, दैट इज इक्विवेलेंट टू द कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है ना. एंड देयर इज वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज in BSc IT, that is C programming language. In BCA there is a QBasic. So in BCA, first of all, there is a language QBasic, interpreter based language. Then after in second year they have to study C language, and in second year you have to study C++. ठीक है. तो C language एक पढ़ना है आपको, C programming. तो basically as per the course is designed, university designed this course in a honors pattern. So there is a 8 ऑनर्स पेपर, ठीक है ना. 8 ऑनर्स पेपर है. टोटल 800 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा 3 इयर्स में. और ऑनर्स 1, ऑनर्स 2 कंडक्टेड इन फर्स्ट ईयर, ऑनर्स 3, 4 कंडक्टेड इन सेकेंड ईयर, एंड रेस्ट 5, 6, 7, 8 इज कंडक्टेड इन फाइनल ईयर. तो 5, 6, 8 में 5, 6 इज कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, यानी कि एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, एंड 6, 7 and 8 is the practical and project part that should be conducted internally, यानी कि that should be judged internally by the college, ठीक है ना, and the marks is uploaded to the university. तो फर्स्ट ईयर में जो आपको पढ़ना है, तो सेगमेंट वाइज अगर देखा जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक पढ़ना है. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी को आप फोकस करेंगे. अर्लियर आप जो एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, पीडीएलसी, ये सारे चीज डिस्कस किया गया. तो दैट इज डिस्कस्ड फॉर द coding of the program, because once you have a concept of the program development life cycle, then you just need a programming language in which you want to execute the same. तो जिसमें उसको execute implement करना चाहेंगे, you just decide one programming language, and university will provide you one programming language in first year, that is in the form of C programming language. So you can implement your algorithm, flow chart, pseudocode, whatever you designed till now in C programming language. That means your executed program is in the form of C program. तो आपका जो प्रोग्राम होगा वो C लैंग्वेज में लिखा जाएगा और वो एग्जीक्यूट होगा. लेटर ऑन जब आप बाद में दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो उसमें उसी एल्गोरिथम को अदर लैंग्वेज में भी इम्प्लीमेंट करेंगे. तो नाउ अंडर दिस पेपर introduction to IBM architecture. Now I just cleared this particular naming convention also. This is equivalent paper to the paper Introduction to Computer Architecture in BCA, but here the name is changed in the form of IBM architecture. IBM, that means the architecture which we have to discuss, that is Intel 8086. Intel 8086 is the older, you can say it is the generation of the particular i3, i7, i5, i9, ठीक है ना. तो जो इंटेल जनरेटेड माइक्रो प्रोसेसर अभी करंट हम लोग देख रहे हैं, i3, i5, i7, i9, that comes from this 8086, that is the origin. So we have to discuss about the origin of the Intel 8086 family. Intel 8086 के बारे में पढ़ना है, and we have certain, यहाँ इसके पीछे एक स्टोरी भी है. IBM ने इस प्रोसेसर को जब अडॉप्ट किया तब ये जो है इंटेल जो है वो रिनाउंड माइक्रो प्रोसेसर प्रोडक्ट डेवलपर या
इन्वेंटर कंपनी जाने लगा। जब तक इसको आईबीएम ने अडॉप्ट नहीं किया था, आईबीएम ने जब इसको अडॉप्ट किया था, आईबीएम ने कब अडॉप्ट किया था और किस वर्जन को अडॉप्ट किया था, तो आईबीएम ने इसके इंटेल 8088 वर्जन को अडॉप्ट किया था। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है ना। IBM इज द कंपनी, आईटी कंपनी, अभी भी है। आप में बहुत सारे सीनियर उसमें भी काम भी कर रहे हैं IBM में। IBM इज दैट पर्टिकुलर नेम ऑफ द कंपनी। एंड अर्लियर डे आप जब पढ़ेंगे फंडामेंटल, तो यू जस्ट गो थ्रू दैट कि बेसिकली योर कंप्यूटर, not in earlier day, now today also your computer only recognize ठीक है ना, the data or instruction in 0 और 1 फॉर्म, ठीक है ना। तो फर्स्ट जनरेशन, अब जैसे हम लोग का जनरेशन है, तो उसी तरह से आपका हर चीज का जनरेशन है। यानी कि देयर इज जनरेशन फॉर कंप्यूटर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ है, बट अभी फिफ्थ को अभी टर्मिनेट नहीं किया गया। तो देयर इज ए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, देयर इज ए जनरेशन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है ना। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ, फिफ्थ। तो हर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कुछ ना कुछ कंपोनेंट एडवांसमेंट हुआ। यानी कि आपका जो कंप्यूटर का जो है कंपोनेंट एडवांसमेंट हुआ, कुछ का साइज इनहांस हुआ, कुछ का साइज डिक्रीज हुआ, ठीक है ना। कुछ का स्पीड बढ़ा, तो पहले का स्पीड कम था तो स्पीड बढ़ा, तो स्पीड को मॉडिफाई किया गया बढ़ाकर, साइज को मॉडिफाई किया गया घटाकर। पहले का जो कंप्यूटर था वो ज्यादा बड़ा साइज का था, उसको धीरे धीरे छोटा किया गया, साइज को रिड्यूस किया गया। स्पीड को मॉडिफाई करने में क्या किया, बढ़ाया गया। तो बढ़ाया कैसे गया, क्लॉक स्पीड बढ़ाया गया कंप्यूटर का। तो जनरेशन बाय जनरेशन कुछ ना कुछ अपडेशन हुआ, तो लैंग्वेज भी आपका अपडेट हुआ। तो फर्स्ट जनरेशन में बेसिकली हम लोग क्या यूज करते थे, यू ऑलरेडी नो, एनीवन, कोई जानते हैं? फर्स्ट जनरेशन में वी आर राइटिंग कोड डायरेक्टली फॉर मशीन लैंग्वेज। तो फर्स्ट जनरेशन में हम लोग मशीन लैंग्वेज यूज करते थे। सेकेंड जनरेशन से हम लोग असेंबली लैंग्वेज शुरू कर दिए, असेंबली। देन आफ्टर वी हैव ए हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना। देन आफ्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। देन वी हैव एसक्यूएल और सर्टेन एडवांस AI, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट सिस्टम एड ऑन हमारा जो इसमें ऐड हो गया फिफ्थ जनरेशन में। अब मशीन लैंग्वेज के बाद जो भी आप देख रहे हैं, all language is not written directly in the form of 0 and 1. Only machine language is written in the form of 0 or 1. So there is no need of translator in case of machine language. तो earlier जो हमारा कंप्यूटर था उसमें किसी भी तरह का आपको ट्रांसलेटर का जरूरत नहीं था। ट्रांसलेटर का जरूरत कब होगा, जब हम किसी लैंग्वेज को बोलेंगे, वो कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा, उसको समझने के लिए उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट होकर उसके लैंग्वेज में होना होगा। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो कंपोनेंट है, एक आपका यूजर है, एक आपका क्या है, कंप्यूटर, ठीक है। ये केवल आपका डेटा जो है वो 0-1 के फॉर्म में रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन केवल 0-1 के फॉर्म में होना चाहिए। यूजर के लिए ये 0-1 आसान नहीं था, तो फर्स्ट लेवल में यूजर ने मशीन लैंग्वेज लिखने का कोशिश किया, ठीक है ना। तो इसमें लगा कि ये बहुत टिपिकल है, टीडियस जॉब है और ज्यादा समय लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना। और दूसरा कि ये पोर्टेबल नहीं है, सबसे मेन फैक्टर क्या था, ये पोर्टेबल नहीं है। अभी क्या है कि अभी आप लैब के कंप्यूटर में भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख लेंगे, अपने लैपटॉप में भी लिख लेंगे, और वही प्रोग्राम आपका जो है किसी दूसरे डेस्कटॉप पर भी चलेगा। यानी एक ही प्रोग्राम को आप बहुत जगह लिख रहे हैं, दैट मीन्स कि ये पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरे जगह आप पोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी आपका सेम कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मशीन लैंग्वेज इज नॉट पोर्टेबल, दैट मीन्स इट इज मशीन डिपेंडेंट। अब ये सबसे बड़ा इशू क्या था यहाँ, कि जो मैन्युफैक्चरर थे उनका मोनोपोली हाई हो गया। यानी कि आप अगर कोई कंपनी आप मैन्युफैक्चर कर रही है कोई कंप्यूटर और उसके लिए कोड कोई डिजाइन कर दिया, तो उस कंपनी को अब वही मैन्युफैक्चरर से परचेज करना होगा मशीन, क्योंकि वो कोड उस मशीन के बेसिस पर डिजाइन किया गया है। तो अभी क्या है कि आप HP का भी मशीन ले लेते हैं, डेल का भी ले लेते हैं, CL का भी ले लेते हैं, यानी कि यू आर
there is no any compulsion to purchase any brand of machine. So branded machine is not purchased by the company. Any machine can be purchased, only configuration is will be check out. तो configuration check होगा, किसी कंपनी को मशीन खरीद सकते हैं. मशीन लैंग्वेज में ये क्या था, ये क्राइटेरिया नहीं था. तो मशीन लैंग्वेज तो एक बेनिफिट था कि ये फास्ट था. फास्ट इन विच मैनर, देयर इज नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर, बिकॉज ट्रांसलेटर नीड सर्टेन टाइम. ट्रांसलेट करने में जो समय लगा वो नहीं लग रहा था. लेकिन ये पोर्टेबल नहीं था, मशीन डिपेंडेंट था. तो ये फिर क्या था, कॉस्ट इफेक्टिव था, कॉस्ट ज्यादा लगता था इसमें. क्योंकि आप अभी क्या है कि आपके पास ये प्रोविजन है कि यू कैन चूज द मशीन अकॉर्डिंग टू द प्राइस. क्योंकि हो सकता है कि कॉन्फ़िगरेशन वाइज कोई सेम कॉन्फ़िगरेशन का एक कंपनी जो है कुछ हाई प्राइस रखा, कोई थोड़ा सा लो है, तो आप कंपेयर चार्ट करके उसमें फाइनल डिसीजन बना सकते हैं. बट एट दैट डेज देयर इज नो एनी सिलेक्शन पॉइंट. तो ये डायरेक्टली मशीन के लिए लिखा जाता था, डायरेक्ट फॉर मशीन. तो 01 के कोड में लिखा जाता था. अब जो भी इंस्ट्रक्शन था उसमें ऑपरेशन या ऑपरेंड हर चीज 01 में लिखा जाता था. जैसे अभी आप प्रोग्रामिंग करेंगे, 2 नंबर को जोड़ना है तो क्या करते हैं, 2 नंबर लिए, तीसरा नंबर में इसको जोड़कर रख दिए. अब ये ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी जो आप लिख रहे हैं, या जो भी इंस्ट्रक्शन इनपुट प्रिंट लिख रहे हैं, ये यूजर को पता है कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी पर्टिकुलर कंपाइलर के लिए ये कोड सिंटेक्स के फॉर्म में आप यूज कर रहे हैं. लेकिन आपके मशीन को नहीं पता, आपके प्रोसेसर को नहीं पता है. तो प्रोसेसर को इसको समझाने के लिए क्या जरूरत पड़ गया, तो एक ट्रांसलेटर का जरूरत पड़ गया, जिसको आप बोल सकते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर, जिसको आप बोल सकते हैं लैंग्वेज सॉफ्टवेयर. ठीक है ना. तो लैंग्वेज प्रोसेसर, ट्रांसलेटर, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, यू कैन से एनीथिंग, समटाइम्स सिस्टम सॉफ्टवेयर आल्सो. तो यहाँ पर इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया असेंबली लैंग्वेज का. अब ये असेंबली लैंग्वेज जो है ये 01 के फॉर्म में ही लिखा था, और कंप्यूटर भी 01 समझता है. हाँ, बाइनरी फॉर्म में. अब ये तो क्या था, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखा हुआ था, इंग्लिश लैंग्वेज में. तो अब ये 01 के फॉर्म में समझता है. तो अब इस असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाने के लिए बीच में एक ट्रांसलेटर इंट्रोड्यूस करना पड़ गया. समझ में आ रही बात. यानी कि पहले जो लिखा गया मशीन लैंग्वेज में, वो मशीन लैंग्वेज कोड डायरेक्टली कंप्यूटर समझ रहा था. तो 01 में मशीन लैंग्वेज में लिख रहे थे और कंप्यूटर को भी 01 में समझ में आ रहा था. जैसे ही असेंबली लैंग्वेज में गए, यानी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में गए, और बोल सकते हैं कि 1GL से 2GL में गए. यानी कि हमारा फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज था, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज हमारा क्या बन गया, असेंबली लैंग्वेज. तो फ्रॉम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज ऑनवर्ड्स देयर इज नीड ऑफ ट्रांसलेटर, और यू कैन से लैंग्वेज प्रोसेसर, to convert that English like language into 01 form, because our computer recognize only the instruction written in the form of 0 and 1. तो यहाँ एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसलेटर और लैंग्वेज प्रोसेसर और लैंग्वेज सॉफ्टवेयर. ठीक है ना. तो दैट इज द नीड, बिकॉज विदाउट दैट लैंग्वेज प्रोसेसर, ट्रांसलेटर और लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, देयर इज नो प्रोविजन टू ट्रांसलेट और कन्वर्ट द इंग्लिश लाइक लैंग्वेज कोड इनटू 01 फॉर्म. तो 01 फॉर्म में चेंज करने के लिए हमको वो ट्रांसलेटर का जरूरत पड़ा. क्या था, पहले हम डायरेक्ट मशीन के लिए कोड लिखते थे, इसके बाद ये ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट आ गया. तो ट्रांसलेटर में क्या है, हमारा सोर्स कोड गया. अब ये सोर्स कोड का कॉन्सेप्ट असेंबली लैंग्वेज से ही आ गया, और ऑब्जेक्ट कोड. तो सोर्स कोड हो गया आपका इंग्लिश लाइक लैंग्वेज बोल सकते हैं, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, या आप इसको बोल सकते हैं ह्यूमन रीडेबल. ठीक है ना. लैंग्वेज यानी जिस लैंग्वेज को आदमी पढ़ सकता हो, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट बोल सकते हैं, लैंग्वेज बोल सकते हैं, या ह्यूमन रीडेबल कोड. तो अभी जो सी का प्रोग्राम आप लिखेंगे वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका मशीन नहीं पढ़ सकता है. तो इस ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को मशीन रीडेबल फॉर्म में, मशीन रीडेबल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम ऑब्जेक्ट कोड यूज किए. तो आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, व्हाट इज सोर्स कोड.
तो सोर्स कोड इज द कोड रिटन इन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज एंड इट इज ह्यूमन रीडेबल फॉर्म ऑफ द कोड राइटिंग। तो कोड को लिखने के लिए जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म आपका क्या हुआ, सोर्स कोड। सोर्स कोड में भी असेंबली लैंग्वेज कोड, हाई लेवल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो वेरी करेगा जनरेशनल लैंग्वेज। जैसे जैसे 1GL के बाद 2GL में गए तो आपका सोर्स कोड आपका असेंबली लैंग्वेज था, फिर थर्ड जनरेशन में आपका इंट्रोड्यूस हो गया हाई लेवल लैंग्वेज, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। तो अलग अलग लैंग्वेज आपका चेंज हो रहा है। तो सोर्स कोड, अब यहाँ से ही कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा, 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको निकला। ये जो ट्रांसलेटर है ये जनरल फॉर्म हो गया। अब ये ट्रांसलेटर को ही हम लोग रिप्लेस करते हैं असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर से। तो आपका यहाँ पर 2-3 कॉन्सेप्ट आएगा। सोर्स कोड, सबसे पहले सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आपका हो जाएगा सोर्स कोड बोले सोर्स प्रोग्राम, ठीक है। सोर्स प्रोग्राम, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, हाँ, सोर्स कोड, सोर्स प्रोग्राम। उसके बाद आप ये भी बोल सकते हैं सोर्स लैंग्वेज, सोर्स लैंग्वेज इसको बोला जा सकता है, सोर्स लैंग्वेज, और ये ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। अभी तक जो भी लिखा गया ये सब जनरलाइज फॉर्म में लिखा गया, लेकिन इसको हम लोग स्पेशलाइज कर देंगे जब यहाँ लिख देंगे HLL, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे ML। तो HLL स्टैंड्स फॉर हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, एंड ML स्टैंड्स फॉर मशीन लैंग्वेज। यानी कि आप अब इससे समझिए कि सोर्स लैंग्वेज इज द लैंग्वेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन रीडेबल, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शंस। तो द लैंग्वेज विच इज रिटन इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट और फॉर्म is known as source language, and the language which is written in the machine language form, any machine readable form, that is object language. You can say in the same manner you can give the definition of source program, the program which is written in the human readable format. यानी कि जो प्रोग्राम आप ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लिख रहे हैं that is the source program, and जो प्रोग्राम आप मशीन रीडेबल फॉर्मेट में आपका जो आप पढ़ पा रहे हैं या आपका मशीन पढ़ पा रहा है, आप तो नहीं पढ़ पाएंगे, so that is the object program. The same manner the code written in the human readable format is the source code, and the code written in the machine readable format is the object code. Now in first generation computer, जब हम लोग first generation की बात करेंगे, your both source code and object code is ML. Are you getting the point? Your source code is also machine language form, machine readable format, and your object code is also machine readable format. That means we are using 0-1, ठीक है ना, to write the code, source code, and the same code is for just you can say recognized by the machine in the form of 0 and 1. तो आप भी लिख रहे थे 0-1, मशीन भी 0-1 समझ रहा था, इसलिए कोई बीच में किसी तरह का कोई कन्वर्जन फैक्टर का जरूरत नहीं महसूस हुआ। लेकिन जैसे ही 2GL में गए, 1GL से, जैसे 1GL मीन्स फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, जैसे 1GC फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, इन माइक्रो प्रोसेसर आल्सो देयर इज अ जनरेशन। तो एक माइक्रो प्रोसेसर i3 का आप देखेंगे 10th 11th जनरेशन, दैट मींस जनरेशन बाय जनरेशन सम मॉडिफिकेशन एंड सम अपडेशन अकर इन द अर्लियर एग्जिस्ट, जो अभी अर्लियर आपका एग्जिस्ट कर रहा था प्रोसेसर। तो फीडबैक के बेसिस पर क्या रिन्यूअल किया जा सकता है, क्या उसमें मॉडिफाई किया जा सकता है, क्या अपग्रेडेशन किया जा सकता है, यूजर फीडबैक के बेसिस पर उसमें जनरेशन बाय जनरेशन मॉडिफाई किया गया। तो दैट इज द पर्टिकुलर नीड ऑफ ट्रांसलेटर, यू कैन से। अब जो आप सी लैंग्वेज पढ़ेंगे वो एक तरह का ट्रांसलेटर ही है, ठीक है। इन 1972 एक लैंग्वेज आपका आया, 1972 जब आप वो देखेंगे तो वो थर्ड जनरेशन में आता है, ठीक है ना, 1972, क्योंकि 45 to 54 इज द फर्स्ट जनरेशन, सम बुक में लिखा हुआ है 42 to 54, 55 to 64 इज द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का था, 65 to 74 देयर इज अ थर्ड जनरेशन। तो 72 में आपका सी लैंग्वेज आया, 1972 में डेनिस रिची ने इस लैंग्वेज को दिया। तो वहां पर ट्रांसलेटर जो है वो एज ए कंपाइलर यूज हुआ,
So your compiler and interpreter is the other two option. ठीक है ना, ये दो। तो आप ये समझ लीजिए कि पहले इंटरप्रेटर आया था फिर कंपाइलर, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी पाइथन भी आप पढ़ेंगे तो दैट इज आल्सो इंटरप्रेटर बेस्ड। अब ये दोनों में अंतर क्या है समझ लीजिए। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर बोथ आर द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और किस पर्पज से होगा आपको ही पता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता होगा। सोर्स कोड आप लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट कोड आपका मशीन के लिए होगा, यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्जन के लिए हम लोग ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर यूज करेंगे। तो जो लैंग्वेज पढ़ाया जाता है वो कंप्लीट कंपाइलर सिंटेक्स पढ़ाया जाता है, यानी एक कंपाइलर डिजाइन किया गया, सी लैंग्वेज नाम दिया गया, उस लैंग्वेज में कुछ ग्रामर है, that is called syntax, and you have to follow that grammar or syntax to write the program। ठीक है ना, पाइथन इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर बेस्ड बता रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बेसिकली क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर बोथ आर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो अभी जैसे हम लोग यहाँ पर ट्रांसलेटर को लिखे, इस ट्रांसलेटर की जगह अगर हम कंपाइलर लिख दें तो कंपाइलर इज यूज्ड एज ए ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर के रूप में कंपाइलर यूज हो रहा है। तो आपका सोर्स कोड अगर असेंबली लैंग्वेज होगा, जो सेकंड जनरेशन में हम लोग यूज करते थे, तो सोर्स कोड अगर असेंबली लैंग्वेज होगा तो वहां पर उस असेंबली को कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का जरूरत है। तो ट्रांसलेटर के रूप में असेंबलर इज यूज एज ए ट्रांसलेटर। whenever you have to convert high level language or object oriented programming language into machine language form, then you need either compiler or interpreter। Now what is the basic difference between these two? Compiler जो है वो इंटायर कोड को एक बार स्कैन करता है, यानी इन कंपाइलर स्कैनिंग प्रोसेस इज accomplished फॉर इंटायर कोड। सपोज आपने अगर 3000 लाइन या 2000 लाइन का कोड लिखा है, तो योर कंपाइलर गिव्स यू द डिटेल अबाउट द एरर लॉग, या लॉग डिटेल्स आपका जो है वो पूरे 2000 लाइन का एक बार देगा। हो सकता है उस 2000 लाइन में 50 लाइंस में एरर है, तो 50 लाइंस एक बार मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि आपको 1 by 1 50 लाइंस को रेक्टिफाई करने का समय मिल जाएगा। तो एक एक लाइन में आप जाएंगे, रेक्टिफाई करेंगे, एरर मैसेज पढ़ेंगे, उस एरर मैसेज को पढ़ने के बाद आप एरर को रेक्टिफाई करेंगे। इंटरप्रेटर के केस में क्या है, इंटरप्रेटर के केस में है कि आपका हर लाइन स्कैन्ड होता है, वो एरर फ्री होना चाहिए दूसरे लाइन में जाने के लिए। यानी कि अगर ये पहले लाइन में एरर है तो यू डोंट मूव टू द सेकंड लाइन, योर कोड इज इंटरप्टेड ओवर देयर। तो क्यू बेसिक जो बीसीए वाले पढ़ रहे हैं अभी, या आगे आपको एक क्यू में पाइथन पढ़ रहे हैं लोग, तो इसमें क्या है, क्यू बेसिक में, हाँ एक क्यू में पाइथन है सर, हम लोग को आप लोग को एड ऑन दिया जाएगा पाइथन। क्यू बेसिक आपको नहीं पढ़ना है, बट क्यू बेसिक जो है दैट इज द एल्गोरिथम बेस्ड लैंग्वेज। एल्गोरिथम को सीखने के लिए है, वो कोई इशू नहीं, आप सी लैंग्वेज में सीख लेंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन पुराना लैंग्वेज, पुराना तो सी भी है, लेकिन सी हमेशा के लिए यूज है, सबको ही पढ़ना है। अभी सर रेलेवेंट है क्यों बेसिक? ये रेलेवेंट, और ये बात पूछिएगा तो रेलेवेंट पाइथन नहीं पढ़ना है क्या? पाइथन देखिए कोर्स वाइज में आपके यूनिवर्सिटी ने पाइथन ऐड नहीं किया अभी सिलेबस में, बट यहाँ इनसाइड सी में इट, हाँ दैट पेपर इज डिस्कस्ड अंडर एड ऑन, ठीक है ना। तो यू आल्सो हैव ए कांसेप्ट ऑफ पाइथन। क्या है उसको हम लोग डिटेल्स आपको बताया जाएगा, वो तो दिया गया, वो एडमिशन के समय में दिया गया, ठीक है ना। हाँ, तो वो सारा चीज आपको एड ऑन में दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी पार्ट में नहीं है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर वो लाइन बाय लाइन स्कैनिंग करेगा। लाइन बाय लाइन कहने का मतलब है कि अगर फर्स्ट लाइन में एरर है तो सेकंड लाइन एग्जीक्यूट करने का सवाल ही नहीं है। कंपाइलर में क्या है कि एक बार आप वो सारे एरर मैसेज को देख सकते हैं जो आपने क्रिएट किया है। जैसे सपोज आप जो प्रोग्रामिंग करेंगे, आपको टर्बो सी कंपाइलर यूज करना है, तो सपोज कोई एक प्रोग्राम अगर आप लिखते हैं, कंपाइलर क्या करता है वो बता रहे हैं। सपोज इफ यू राइट एनी प्रोग्राम हियर इन सी लैंग्वेज, यू हैव टू राइट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, एंड वी जस्ट मेंशन हियर इंक्लूड studio.h, ठीक है। और इसके बाद डायरेक्ट हम लोग प्रोग्राम लिख लेते हैं void
main in सपोज s एक वेरिएबल लेते हैं और s का स्क्वायर रूट हमको निकालना है सपोज। अब स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है, हमने कोई फंक्शन अभी बनाया नहीं है। अब इसका जो है लाइब्रेरी हमको यूज करना होगा और लाइब्रेरी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, और अगर प्रोग्राम रन करेंगे तो क्या एरर आता है ये अभी हम लोग देखेंगे। तो वी जस्ट राइट हियर प्रिंटफ enter any number and we just want to take input for that number. Okay, and now we want to print the square root of percentage d equal to percentage d, and here we call the square root function. ठीक है ना, स्क्वायर रूट एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो इस s का स्क्वायर रूट निकालेगा। ठीक है, नाउ अब इतना करने के बाद इसको सबसे पहले तो सेव एग्जीक्यूट करेंगे, तो सेव करना होगा कंपाइल एंड रन। वी जस्ट सेव इट। राइट नाउ वी आर यूजिंग dev C++, so here you can execute C and C++ both programs. So C++ source file is the by default extension, so we just change it by source C source file. तो अब ये आपका फाइल हो गया prog, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट था तो कॉल भी हो गया। देखिए यहाँ एक वार्निंग है, इनकम्पेटेबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन स्क्वायर रूट। ठीक है ना, इनकम्पेटेबल का मतलब कि अभी आप जो यूज करना चाह रहे हैं, सपोज स्क्वायर रूट ऑफ किसी का बोलिए जैसे 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, तो अभी वैल्यू क्या आ रहा है 0 0। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका कंपाइलर को उसका डिफिनीशन नहीं मिल रहा है। अब ये डिफिनीशन नहीं मिल रहा है तो ये एरर है, लेकिन वार्निंग में कर दिया आपका आउटपुट सही नहीं हुआ, क्योंकि ये आईडी है, ये आपका कंपाइलर नहीं है, ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। जब टर्बो सी में करेंगे तो वो डायरेक्ट एरर मैसेज क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पर क्या है कि आपका ये स्क्वायर रूट क्यों नहीं कैलकुलेट हुआ, इसलिए कैलकुलेट नहीं हुआ। पहला चीज तो ये कि यहाँ पर 2% डी हम लोग लिए थे, एक था नंबर के लिए जिसका स्क्वायर रूट निकालना है और दूसरा था उसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के लिए हम लोग लिखे और नंबर के लिए नहीं लिखे, पहला चीज। दूसरा, यहाँ पर हम इसका लाइब्रेरी नहीं बताया जहां पर इसका डिफिनीशन है, जिससे कंपाइलर कंपेयर करेगा कि आप सही यूज कर रहे हैं स्क्वायर रूट का या नहीं। अगर स्क्वायर रूट में हमको इंटीजर पास करना है, अगर फ्लोट पास कर देंगे तब भी एरर आएगा। तो चूंकि एस आपका इंटीजर है, आगे वो डिटेल आप पढ़ेंगे। तो इंक्लूड अगर हम यहाँ कर दें math.h, ठीक है, तो math.h now it is compiled, again we compile and run. Now there, just see here, no errors are there, no warnings are there, because compiler को कंपेयर करने के लिए रिसोर्स फाइल मिल गया। यानी कि स्क्वायर रूट फंक्शन जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसका डिफिनीशन तो हम दे नहीं रहे हैं, तो उसका डिफिनीशन उसको कहां से कंपेयर करेगा, एरर लॉग कैसे जनरेट करेगा, एरर फ्री कैसे बताएगा। इसके पहले वार्निंग आया कि कंपेटेबल नहीं है, चेक नहीं कर पा रहा है, अभी एरर फ्री आ गया, वार्निंग फ्री हो गया। अब आप अगर 9 का देखेंगे तो यू जस्ट सी द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 0। अभी भी स्क्वायर रूट 9 का आपका 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है? अब क्या प्रॉब्लम है? स्क्वायर रूट फंक्शन आपका हम लोग ऐड भी कर दिए। अब यहाँ पर क्या आपको लगता है कहाँ प्रॉब्लम होगा? क्योंकि नंबर हमने एंट्री किया है, 9 इज द नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। अब बताइए कि यहाँ पर क्या एरर हो सकता है? स्क्वायर रूट ऑफ परसेंटेज डी इक्वल टू परसेंटेज डी भी सही है, दोनों इंटीजर है, 3 भी इंटीजर होगा, 9 भी इंटीजर होगा। एस हम कॉल कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एस को पास कर रहे हैं, यानी एस जो है उसको स्क्वायर रूट में पास कर रहे हैं। सही। लॉजिकली आपको इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है, आपको सिंटेक्स नहीं अभी केवल इतना जानना है कि printf is used for message और value display and scanf is used for taking input।
तो अगर हम इंटीजर ले रहे हैं तो इंटीजर इनपुट करेंगे, फ्लोट ले रहे हैं तो फ्लोट इनपुट करेंगे। हाँ, डोंट नो, बट स्टिल यहाँ पर आपको इतना ही समझना है कि स्क्वायर रूट का काम क्या है। स्क्वायर रूट आप जब निकालते हैं तो क्या है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ s, s is your number entered number and we are using math.h header file to find out the square root. तो स्क्वायर रूट हमारा निकलना चाहिए, जस्ट चेक इट। अगर हम 4 यहाँ पास करें तो अगेन वो आपका आउटकम जनरेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ एरर है। योर परसेंटेज, फर्स्ट परसेंटेज डी ओके, योर सेकंड परसेंटेज डी कंटेन सर्टेन एरर। तो और इफ यू जस्ट omit the first one, square root is, suppose square root is, don't print this one and then check out 4. now स्क्वायर रूट फंक्शन आपका यहाँ काम नहीं कर रहा है, तो सिंटेक्स, हाँ वही देखो, वही कर रहे हैं। स्क्वायर रूट आपका यहाँ पर math.h आपका जो सिंटेक्स है वो भी सही है, सब वही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्क्वायर रूट ऑफ s, ठीक है, तो s आपका ऑलरेडी इंटीजर है, ठीक है, तो इंटीजर के लिए आपका जो है लिमिटेड रेंज आपका सही है इसमें। अब यहाँ पर इसी चीज को, एक मिनट, टर्बो C++ कंपाइलर में आप ओपन करिए, ये आपका मेन कंपाइलर है, ठीक है। तो टर्बो C++ कंपाइलर में अगेन जस्ट राइट void। अब यहाँ पर क्या है कि आईडी में आपका मैसेज आउटपुट स्क्रीन था, यहाँ पर स्क्रीन को रोकना होगा, तो स्क्रीन को होल्ड करने के लिए वी जस्ट यूज कंसोल इनपुट आउटपुट conio.h। बातें कीजिए। यहाँ पर एक एरर बताया, अब वो एरर क्या है जस्ट सी है, फंक्शन sqrt शुड हैव प्रोटोटाइप, है ना। नाउ दिस इज द मेन आपका कंपाइलर है जिस पर आपको रन करना है प्रोग्राम, दैट इज द IDE। तो यहाँ वहाँ जो वार्निंग था यहाँ पर एरर है। एरर क्या है कि sqrt का प्रोटोटाइप होना चाहिए। प्रोटोटाइप कहने का क्या मतलब है कि कंपाइलर को इसका क्या सिंटेक्स है वो नहीं मिल पा रहा है, तो कंपाइलर को ये पता होना चाहिए कि आपका इसका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन क्या है। तो ये हाँ, तो सिंपली है कि sqrt इज द मैथमेटिकल फंक्शन, तो मैथमेटिकल फंक्शन नीड टू इंक्लूड हियर, तो हैश इंक्लूड मैथ डॉट
डॉट ये एच आपका एरर फ्री हो जाएगा क्योंकि मैथमेटिकल मैथ डॉट एच हेडर फाइल है। प्रोटोटाइप कहने का मतलब कि एसक्यूआरटी का जो डिफिनीशन है वो मैथ डॉट एच से इसको मिल जाएगा। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट दैट एरर इज फ्री। नाउ व्हेन यू एग्जीक्यूट द पर्टिकुलर प्रोग्राम, then enter any number, suppose we enter 9. Here we are taking clear screen, we have to take get cs to pause the screen, screen को रोकना होगा। Now when you take value 9, you will get square root of 9 is 0, again 0. So why 0? You don't know, but the syntax of the particular square root function is the same. You have to pass the integer value, और integer value का range आपका जो है ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर एक चीज आपका होगा कि आप रेंज इसका ज्यादा ले, ठीक है ना, डबल, क्योंकि आपका स्क्वायर रूट फंक्शन जो है वो उसमें आप टोटल, जैसे हमने छोटा वैल्यू 9 लिया तो छोटा वैल्यू 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 है, लेकिन आपका जब 144 या और ज्यादा बड़ा 5-6 डिजिट का जब लेंगे तो इसका वॉल्यूम, तो इसका जो सिंटेक्स है उसमें रेंज आपका इंटीजर लिया हुआ है, तो हाई रेंज का हमको डेटा टाइप लेना होगा। तो हाई रेंज का अगर डेटा टाइप लेंगे तो यहाँ पर फिर डबल का जो है वो सिंटेक्स आपको यूज करना होगा। ठीक है, नाउ so 9, now see here, enter any number 9, now square root of 9 is 3। तो अब यहाँ पर क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 आपका 3 है, इसलिए क्यों, क्योंकि आपने इंटीजर डेटा दिया, आपने प्रोग्राम में इंटीजर लिखा, लेकिन स्क्वायर रूट का जो फंक्शन है जिसको डिफाइन किया गया उसमें पैरामीटर डबल रखा गया है, यानी कि उसका जो वैल्यू होगा वो डबल होगा। तो डेटा टाइप आपका लो रेंज में जा रहा था, इसलिए वो कंपेयर करके रीड नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि पॉइंट के बाद बहुत सारा लाइन, बहुत सारा डॉट के बाद 0 0 है, उसको डिलिमिट आप यहाँ से कर सकते हैं। इफ यू वांट टू डिलिमिट द पर्टिकुलर पॉइंट बाय 6, सपोज 6.2, तो 6.2 का मतलब कि पॉइंट के बाद 2 ही प्लेस चाहते हैं आप, पॉइंट के पहले 6 प्लेस तक का वैल्यू आप ले सकते हैं। सेम थिंग यू कैन टेक हियर आल्सो 6.2, 8.2, अगर टोटल 8 रखना चाहते हैं तो 8 भी रहेगा, इंक्लूडिंग डॉट एंड द पर्टिकुलर पॉइंट। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट द सेम, नाउ सी हियर, व्हेन यू टेक द 9, नाउ द पॉइंट इज डिलिमिटेड, ठीक है ना। तो 6.2, 8.2 करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक वैल्यू जाएगा, और पॉइंट से के पहले का वैल्यू आपका 2 और 1.3 हो गया। तो अगर 6 लेंगे तो 3 डिजिट का और वैल्यू हो सकता है, 8 लेंगे तो टोटल आपका साइज 8 होगा, जिसमें वो डॉट और 2 डिजिट डेसिमल का भी शामिल होगा। तो पॉइंट के पहले कितना होगा, 5 होगा, 5 और 3 8। 11.2 लिखेंगे तो टोटल 11 होगा, यानी कि जिसमें 3 घटा दीजिए, तो पॉइंट और पॉइंट के बाद 2 प्लेस, तो 3 हो गया, तो 11, यानी कि पॉइंट के पहले कितना डिजिट होगा, 8। तो उस हिसाब से आपका यहाँ देखिए जगह भी खाली है, स्पेस हमने क्रिएट नहीं किया था, लेकिन स्पेस क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने 6 लिया है। तो 6 लिया है, तो 6 का मतलब है कि 3.00, इसका मतलब है कि 4 तो यूज हुआ और 3 के पहले 2 प्लेस यूज नहीं हुआ, तो वो 2 प्लेस क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको 11 कर दें तो आप गैप बढ़ जाएगा और ज्यादा, यहाँ पर 11 कर देंगे तो अब ये गैप बढ़ जाएगा। अब देखिए ज्यादा गैप लगेगा, सपोज हम 9 का ही अगर डिस्प्ले करा रहे हैं तो गैप बढ़ गया, क्यों, क्योंकि ये टोटल 11 डिजिट काउंट किया, जिसमें से हमने 4 को तो यूज किया है, डेसिमल के बाद 2 और डेसिमल के पहले 1 और इंक्लूडिंग डेसिमल 4 हो गया। तो 3 डॉट, दूसरा 2 0, तीसरा और चौथा हो गया। इसके पहले 3 पे कितना स्पेस क्रिएट हो गया, 8, टोटल 11 है। टोटल 11 का मतलब कि पॉइंट और 0 0 इंक्लूड करके, तो 3 के पहले 8 आपका स्पेस इसलिए क्रिएट हो गया। तो ये जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे उसी हिसाब से आपका यहाँ पर
तो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम था जिसको हम लोग एनालाइज यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जब डबल कर देंगे तो डबल करने से स्क्वायर रूट ऑफ, डायरेक्ट अगर भी लिख रहे हैं तब भी ठीक है, यू हैव टू टेक हियर LF and here also LF. Now your program is okay here also. तो अगर यहाँ 9 लेंगे तो यहाँ square root is 3. Are you getting the point? Why I move to you the original compile? Yes, you another number. Yes. बोलिए कौन सा नंबर है? 35 का स्क्वायर रूट 25. हाँ तो 25 144 जितना। हाँ अब यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर भी आप डिलिमिट कर सकते हैं पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक 6.2 8.2 11.2 जितना डेटा आपको लेना है। वाई आई डिस्कस दिस थिंग्स, इसका इम्पैक्ट क्या है। सपोज अगर 144 लेना है तो 12 आएगा 12.00। तो ये डिस्कस करने के पीछे मेन है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप का क्या इंपॉर्टेंस है। हमने लॉजिकली कोई चेंजिंग नहीं किया, फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं किया, लेकिन हमने डेटा टाइप लो रेंज का लिया और आपका जो फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, वो हाई रेंज का डेटा टाइप एज ए पैरामीटर यूज कर रहा है। हाँ तो आपका जो है पैरामीटर अगर लो रेंज का लीजिएगा तो काम नहीं करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा टाइप इन कंपाइलर। तो अब कंपाइलर, अभी आप एक एग्जांपल लीजिए, कंपाइलर सी लैंग्वेज, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज ही पढ़ेंगे आप, जिसमें अभी एक एरर आप देखें, हो सकता है कि हम और एरर क्रिएट करते, ठीक है ना। जैसे उसी प्रोग्राम में हम एक ओपनिंग पैरेंथेसिस या कोई पर्टिकुलर हम पॉइंट को छोड़ देते। सपोज यहाँ पर हमने ये क्लोज किया है, इसको क्रिएट कर दो, मिस्टेक क्रिएट कीजिए। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ इसका बेनिफिट क्या है कि आप देखिए एक लाइन से आपका नंबर ऑफ एरर जनरेट हो गया। डेढ़ बजे से प्रोग्राम है, सॉरी 2 बजे से पाटलिपुत्रा में खादी ग्राम उद्योग का, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से निकलेंगे 1:30 बजे। कितना बजे क्लास खत्म है? 1 बजे। हाँ तो 1 बजे से निकल के चल जाएंगे पाटलिपुत्रा, वही टॉप फ्लोर का प्रोग्राम है, ठीक है। ठीक हाँ है कोई प्रोग्राम, ठीक है, सरकार का गवर्नमेंट प्रोग्राम जाना जरूरी है। अच्छा वो आपका डिसीजन बता दिया गया है प्रोग्राम में, ठीक है, क्या करना है वो योर डिसीजन। अब यहाँ देखिए एक केवल कोटेशन को बंद कर दिए, यहाँ पर हटाए तो इतना एरर है। ये आपका एडवांटेज है कंपाइलर का। कंपाइलर आपको वो सारा एरर मैसेज लॉग जनरेट करके देता है। प्रोग्राम कंपाइल हुआ, ऐसा नहीं है कि आपको लिखने के दौरान कहीं रुकावट आया, लेकिन आपको जो एरर लॉग जनरेट हुआ मैसेज, उसमें वो सारे एरर दिखे, जिसके चलते वो हो सकता है कि कोई एरर, एक एरर के चलते मल्टीपल एरर जनरेट हो। आप एक करेक्ट करेंगे, जैसे अभी क्या है, इस एक के चलते नंबर ऑफ एरर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। टर्मिनेटेड कैरेक्टर, मिसिंग टर्मिनेटेड, एक्सपेक्टेड ओपनिंग ब्रैस, सेमीकोलन मिसिंग, ये सारा आपको एक्सपेक्टेड, ये सारा एरर आ गया। तो इस एक के चलते इतना सारा एरर आया, और एक को आप सही करेंगे सब एरर खत्म होगा। इसका मतलब है ये आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये हम सजेस्ट करेंगे कि आप ये सारे, ठीक है, तो ये एरर आप क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो एरर क्रिएट करेंगे। आई थिंक दैट की डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर इंटरप्रेटर इज क्लियर टू यू। अब ये इंटरप्रेटर में क्या होगा कि जब आप प्रोग्राम लिखेंगे, किसी लाइन में एरर आया तो वहां पर ही आपको नोट कर देगा। इंटरप्रेटर तुरंत बताएगा आपको कि एरर फ्री करो इसको, तभी हम दूसरे लाइन में जाने देंगे। तो इंटरप्रेटर स्कैनिंग लाइन बाय लाइन करता है। आप जब आगे जावा पढ़ेंगे तो जावा में कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन दोनों होता है। पहले कंपाइलेशन होता है और फिर इंटरप्रिटेशन होता है। तो बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर टेक्निक इज यूज्ड इन जावा प्रोग्रामिंग एंड इट इज ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So I think that this concept of source code, source program, because when we discuss the architecture, so architecture is correlated with the operating system. It is correlated with the fundamental part also.
because it is the central wing, central part है. तो next class हम लोग इसको introduce करेंगे. Today is the first class. Yes, sir. So I just give you the introduction about the particular language, translator, generation, ठीक है ना, इसका concept, because that is and the processor Intel 8086 जिसको हम लोग को पढ़ना है. And why it is IBM architecture mentioned here, because IBM ने adopt किया था 8088 microprocessor, और जो architecture IBM architecture हमको पढ़ना है we have to discuss the architecture of Intel 8086 and you already आप आगे हम लोग discuss करेंगे. 8086 and 8088 both are same microprocessor, only the name will be changed. ठीक है ना, केवल नाम बदला. नाम इसलिए बदला क्योंकि बदलने की जरूरत पड़ी. 8086 कॉस्टली था, वो ज्यादा सर्कुलेट नहीं हो पा रहा था, उसका पॉपुलेशन लो था. पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए अब इमीडिएटली कुछ लॉन्च किया नहीं जा सकता था, या 8086 का दाम घटाया नहीं जा सकता था. मान लेते हैं आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च किए और वो प्रोडक्ट नहीं सर्कुलेट हो रहा है, तो आप तुरंत उसका दाम आधा तो नहीं कर सकते हैं. तो आपने क्या किया, इंटेल ने क्या किया, इंटेल ने उसका नाम बदल दिया. आर्किटेक्चर दोनों का सेम है, इंटेल 8088 एंड इंटेल 8086. तो ये आपका, इसको इसीलिए कहा जाता है चीपेस्ट वर्जन ऑफ 8086, और इसी को IBM ने अडॉप्ट किया था. इंटेल, इसमें से कितने लोग जानते हैं इंटेल का फुल फॉर्म क्या है? इंटेल, हम लोग इंटेल को ज्यादा जानते हैं. इट इज द इंटीग्रेटेड, वी जस्ट डिस्कस द सम हिस्ट्री पार्ट आल्सो. इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना. इसके जो मेन ऑर्गेनाइजर थे, जो मेन इसके ऑनर थे, वो सेमीकंडक्टर कंपनी में काम करते थे, और सेमीकंडक्टर कंपनी से 3 लोग एक साथ रिजाइन करके ये नया कंपनी लॉन्च किए थे, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो 10 साल लगा था एस्टेब्लिश होने के लिए. आई जस्ट शेयर इन डिटेल when I discuss the particular evolution of microprocessor, because we have to discuss the evolution of Intel 8086 bit by bit, कैसे आपका enhance हुआ up to Intel i5, i7, i9 तक, ठीक है ना. तो वो आपका जो है evolution है, that is the historical part. तो 8088 and 8086 having both having the same configuration but different price. So 8086 is costlier and 8088 is the cheapest version, you can say, of the 8086. तो 8088 को ही अडॉप्ट किया था IBM ने, इसलिए क्योंकि 8086 तो बोला कि हम ले लेंगे, लेकिन अगर 8086 हम लेंगे तो 8088 भी अफेक्टेड हो जाएगा. तो इसलिए 8088 लेंगे ताकि ये सर्कुलेट हो, और तुम्हारा 8086 भी हम अडॉप्ट करेंगे. तो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रीजन द आर्किटेक्चर, योर पेपर नेम इज IBM architecture. Actually, in under IBM architecture, we have to discuss about the Intel 8086 architecture. Any architecture of Intel 8086, what is the bus interface unit, what is the execution unit in details. So from next class, we just follow the particular syllabus. Okay, thank you.